ذرا تصور کریں ایک ایسے ملک کا جہاں حکومت یہ طے کرتی ہے کہ آپ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، بال کیسے کٹوائیں گے، کتاب کون سی پڑھیں گے، جہاں خواتین کے فیشن اور لپسٹک کے کلر تک کا فیصلہ حکومت کرتی ہے، جہاں موبائل فون اور کمپیوٹر تو ہوں لیکن انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی اجازت نہ ہو، جہاں ہر شخص کی نگرانی کی جاتی ہو، اور جہاں حکومت کے کسی بھی اصول کی خلاف ورزی کی سزا صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ اس کی 3 نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، یہ کوئی اور ملک نہیں بلکہ دی ون اینڈ اونلی نارتھ کوریا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ آبادی رکھنے والے اس ملک کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کیوں کہتے ہیں، یہاں کون کون سے حیرت انگیز اور چونکا دینے والے قانون ہیں جن پر سب کو لازمی عمل کرنا پڑتا ہے، اور ہم بہت سے ذہنوں میں گردش کرنے والے اس سوال کا جواب بھی دیں گے کہ ایٹمی طاقت ہونے اور انسانی حقوق کی انتہائی بدترین صورتحال کے باوجود امریکہ اور مغربی ملکوں نے ایران اور عراق کی طرح اس کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں نارتھ کوریا اور ایکسپلور کرتے ہیں وہاں کی عجیب و غریب دنیا کو۔ 17 دسمبر 2021 کو نارتھ کوریا کے صدر کم جونگ ان کے والد کم جونگ ال کی 10ویں برسی تھی۔ حکومت نے 11 دن کے سوگ کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ایک انوکھی پابندی لگا دی، ہنسنے پر پابندی۔ ان 11 دنوں کے دوران ملک بھر میں کسی کو بھی ہنسنے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ پابندی بھی تھی کہ اس دوران نہ تو کوئی شادی کرے گا، نہ سالگرہ منائے گا، نہ کہیں گھومنے جائے گا، نہ شاپنگ کرے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو زور زور سے رونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ گھر والے میت کی آخری رسومات بھی 11 دن بعد ادا کر سکیں گے، کیونکہ کم جونگ ان کے والد کی برسی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ہاں، سوگ کے دنوں میں ہر کوئی روئے گا، بلکہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ جس کو رونا نہیں آیا اس کی ملک سے وفاداری مشکوک ہو جائے گی اور سزا ملے گی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب جاپان کا کوریا پر سے قبضہ ختم ہوا تو امریکہ اور سوویت یونین نے کوریا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ سدرن ایریا امریکہ کے زیر اثر چلا گیا اور وہ ساؤتھ کوریا کہلایا، جبکہ ناردرن ایریا پر سوویت یونین نے اپنا اثر ڈالا اور وہ نارتھ کوریا کہلاتا ہے۔ جاپان کے خلاف گوریلا وار لڑنے والے لیڈر کم il سنگ نارتھ کوریا کے پہلے سپریم لیڈر بنے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا کم جونگ il اور اب ان کا پوتا کم جونگ ان۔ یعنی 1948 میں ملنے والی آزادی کے بعد سے اب تک وہاں صرف ایک ہی خاندان کے ان 3 افراد کی حکومت چلی آ رہی ہے، یعنی پہلے دادا، پھر بیٹا اور اب پوتا۔ اب ذرا اس سیٹلائٹ امیج کو دیکھیں۔ ساؤتھ کوریا اور چین کے درمیان جو آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے یہ نارتھ کوریا ہے۔ اندھیرا اس لیے ہے کہ ایک تو یہاں بجلی کی کمی ہے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو رات دیر تک پڑھنے اور ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہیں، تو اس لیے لوگ رات کو بتی بجھا کر جلدی سو جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب یہ ملک ترقی میں چین اور بھارت سے بھی آگے تھا۔ وہاں کے ہر شہری کو تعلیم، صحت، رہائش اور ٹرانسپورٹ جیسی سہولتیں مفت ملتی تھی، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں، 80s تک یہ سب کچھ تھا۔ مگر پھر سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ سوویت یونین نارتھ کوریا کو سستا تیل اور خوراک دیتا تھا۔ سستا تیل بند ہوا تو ملک کے بڑے بڑے بجلی گھروں پر تالے لگ گئے۔ مفت کی بجلی استعمال کرنے والوں کو بجلی مہنگے داموں ملنے لگی۔ خوراک کی بھی کمی ہو گئی۔ امریکہ نے مدد کی پیشکش کی مگر شرط رکھی کہ اپنا ایٹمی پروگرام بند کرو۔ نارتھ کوریا نے انکار کر دیا۔ امریکہ نے پابندیاں لگا دی۔ یوں مصیبت اور بڑھ گئی۔ لیکن نارتھ کوریا کے کیپٹل پیونگ یانگ کو دیکھیں تو بالکل نہیں لگتا کہ یہ ایک غریب ملک کا شہر ہے، کیونکہ حکومت نے دنیا کے سامنے اسے ایک مثالی سوشلسٹ شہر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے یہاں سے سارے غریب لوگوں کو نکال دیا گیا ہے اور یہاں صرف امیر اور خوشحال لوگ ہی رہتے ہیں۔ مہنگائی اور غربت کے باوجود یہاں تعلیم اب بھی مفت ہے۔ ہائی اسکول تک تعلیم سب کے لیے لازمی ہے۔ اگر کوئی بچہ اسکول نہ جائے تو والدین کو سزا دی جاتی ہے۔ 17 سال کی عمر سے ہر شہری کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، فوج میں لازمی سروس کرنا پڑتی ہے۔ مرد کم از کم 10 سال اور عورتیں 7 سال لازمی سروس کرتی ہیں۔ یہاں کھانا بھی حکومت کی مرضی سے کھایا جاتا ہے، جیسا کہ ہاٹ ڈاگ امریکی فوڈ ہے، اس لیے اس پر پابندی ہے۔ اسی طرح ساؤتھ کوریا کی کچھ ڈشیں پکانا بھی منع ہے۔ ہیئر اسٹائل بھی حکومت کی مرضی کے ہی بنوانے پڑتے ہیں۔ مردوں کے لیے تقریباً 10 اور خواتین کے لیے
18 हेयर स्टाइल हुकूमत ने तजवीज़ किए हैं। आप उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन खबरदार, सदर किम जोंग उन के स्टाइल वाली हेयर कटिंग आपने नहीं करानी, क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं। हत्ता कि उनके डिज़ाइन वाला चश्मा भी कोई और नहीं पहन सकता। बालों को डाई करने पर मुकम्मल पाबंदी है। लड़कियों को वेस्टर्न स्टाइल के टाइट कपड़े, छोटी स्कर्ट और धूप से बचाने वाली बड़ी टोपियां पहनने की इजाज़त नहीं। रेड लिपस्टिक लगाना भी मना है। मेकअप को भी वेस्टर्न कल्चर समझा जाता है, इसलिए सिर्फ बहुत हल्का और लिमिटेड मेकअप ही अलाउ किया जाता है। ब्रांडेड कपड़े, नीली जीन्स, फटी हुई या तंग जीन्स पहनना भी सख्ती से मना है, क्योंकि इससे भी बाहर के कल्चर का हिस्सा समझा जाता है। इन सारी चीज़ों पर नज़र रखने के लिए वहाँ फैशन पुलिस घूमती रहती है और जो खिलाफ वर्जी करता नजर आता है उसे पकड़ लिया जाता है। मोबाइल फ़ोन पर भी सख्त पाबंदियां हैं। मोबाइल फ़ोन से इंटरनेशनल कॉल नहीं की जा सकती। स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो नहीं जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हुकूमत ने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि मोबाइल फ़ोन चलते चलते अचानक खुद ही स्क्रीनशॉट लेकर हुकूमत को भेज देता है, ताकि ये मालूम हो सके कि बंदा इस वक्त मोबाइल फ़ोन पर क्या कर रहा था। मोबाइल फ़ोन में कोई ऐप स्टोर नहीं होता। अगर कोई ऐप डाउनलोड करनी है तो मखसूस सरकारी स्टोर पर जाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐप गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। स्मगल शुदा मोबाइल फ़ोन या VPN वाला फ़ोन पकड़ा जाए तो सख्त सज़ा मिलती है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट का इस्तेमाल भी बहुत लिमिटेड है। उसकी जगह लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। यह हुकूमत का अपना तैयार करदा इंटरनल नेटवर्क है। इसमें सिर्फ हुकूमत की सिलेक्टेड वेबसाइट्स होती हैं और ये इंटरनेट सर्विस भी इतनी महंगी है कि आम आदमी इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर किसी को इंटरनेट की जगह इंटरनेट लाजमी इस्तेमाल करना है तो इसके लिए उसे हुकूमत से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और वो परमिशन भी 1 घंटे की होती है। इजाज़त मिलने के बाद किसी खास मकाम पर वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है। इस दौरान इसके दाएं और बाएं 2 सरकारी अफराद इसकी निगरानी कर रहे होते हैं। हर 5 मिनट बाद कंप्यूटर रुक जाता है और उसे दोबारा चलाने के लिए निगरानी करने वाले के फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है। अगर किसी वजह से 1 घंटे से ज़्यादा के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करना पड़ जाए तो हुकूमत से फिर इजाज़त लेना पड़ती है। यहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या नेटफ्लिक्स जैसी किसी चीज़ का तस्वुर तक नहीं। सोशल मीडिया तो है मगर हुकूमत का अपना बनाया हुआ। यहाँ पर आपको हुकूमत के अपने इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो मुल्क को एक खूबसूरत, कामयाब और खुशहाल सोशलिस्ट स्टेट के तौर पर पेश करते हैं। कंटेंट बहुत सोच समझकर तैयार किया जाता है ताकि लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करें और उस पर फख्र महसूस करें। मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है। प्राइवेट न्यूज़ चैनल या निजी अखबारों का वहाँ कोई तस्वुर नहीं। सरकारी मीडिया हर वक्त हुकूमत के नज़रियात और प्रोपेगेंडे को फैलाने में लगा रहता है। मौजूदा और पिछले लीडरों की तारीफें की जाती हैं। खबरों, ड्रामों, यहाँ तक के कार्टूनों में भी हुकूमत की वाह वाह करना लाजमी है। किम जोंग उन को एक हीरो या देवता की तरह पेश किया जाता है। अगर आप वहाँ का कोई न्यूज़ चैनल देखें या कोई अखबार पढ़ें तो आपको लगेगा जैसे नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा आज़ाद और खुशहाल दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं। तफरीही सरगर्मियाँ भी हुकूमत के कंट्रोल में हैं। गैर मुल्की फिल्में या ड्रामे देखने की इजाज़त नहीं। इसे बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। अगर कोई शख्स पकड़ा जाए तो उसे सख्त सज़ा दी जाती है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक हॉलीवुड या साउथ कोरिया की फिल्में या ड्रामे देखने पर तो सजाए मौत तक दे दी जाती है। इसके बावजूद साउथ कोरिया के ड्रामे और फिल्में स्मगल होकर किसी न किसी तरह यहाँ पहुँच ही जाती हैं और मकामी ब्लैक मार्केट में मिल जाती हैं। उन दिनों जब लोग ये फिल्में VCR या DVD प्लेयर पर देखते थे तब हुकूमत लोगों को पकड़ने के लिए अचानक बिजली बंद कर देती थी। बिजली बंद होने से वीडियो कैसेट या DVD प्लेयर में फंस जाती थी और सरकारी अहलकार अचानक घरों में घुसकर DVD और प्लेयर चेक करते थे कि लोग क्या देख रहे थे। अब USB की वजह से लोगों के लिए छुपाना आसान हो गया है, लेकिन फिर भी वो बहुत एहतियात करते हैं। घरों की लाइटें बंद कर देते हैं, खिड़कियां अच्छी तरह ढांप देते हैं और आवाज़ बहुत धीमी रखते हैं ताकि आस पड़ोस में किसी को पता ना चले कि वो गैर मुल्की फिल्में देख रहे हैं। रेलवे और बस स्टेशन पर म्यूजिक नहीं बल्कि किम खानदान की तकरीरें चलाई जाती हैं और इस दौरान किसी को एक दूसरे से बात या शोर करने की इजाज़त नहीं होती। पासपोर्ट सिर्फ किम जोंग उनके करीबी लोगों और सरकारी अफसरों को मिलता है। आम लोग ख्वाब में भी मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते।
मुल्क तो छोड़े, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी हुकूमत की इजाज़त दरकार होती है। ये तक बताना पड़ता है कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, कितना अरसा रहेंगे, कहाँ रुकेंगे। अगर किसी ने छुपकर मुल्क छोड़ने की कोशिश की तो उसे गद्दारी समझा जाता है। ऐसी सूरत में सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को सज़ा दी जाती है, जिसमें उम्र कैद भी हो सकती है और सज़ाए मौत भी। शुमाली कोरिया में एक अनह्यूमन क्लास सिस्टम है जिसे सोंगबन कहते हैं। इसमें 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा कोर कहलाता है, जो आला तबका है, और इसमें वो लोग होते हैं जिनके बड़ों ने शुमाली कोरिया के इनकलाब में हिस्सा लिया या जनूबी कोरिया के खिलाफ जंगें लड़ी। उन्हें बेहतरीन नौकरियां, फौज में आला ओहदे, प्यांगयांग में रहने की इजाज़त, गाड़ियां और दीगर सहूलतें मिलती हैं। उनकी तादाद कुल आबादी का 25 से 30% है। दूसरा दर्जा है वेवरिंग। ये दरमियाना तबका है। इसमें वो लोग आते हैं जिनके बाप दादा ना बहुत वफादार थे ना गद्दार। उन्हें दरमियाने दर्जे की सहूलतें मिलती हैं। ये कुल आबादी का 50% हैं। तीसरा और सबसे कम तर दर्जा है हॉस्टाइल। ये वो तबका है जिनके बाप दादा या तो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते थे या जनूबी कोरिया में उनका कोई रिश्तेदार था। इन्हें घटिया दर्जे की नौकरियां दी जाती हैं। इन पर नज़र भी ज़्यादा रखी जाती है। वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न मीडिया किम जोंग उनकी गवर्नमेंट को एक क्रिमिनल नेटवर्क भी करार देती है। उनका कहना है कि नॉर्थ कोरियन सरकार असलहा, मनशियात, जाली करेंसी और साइबर क्राइम के जरिए हर साल तकरीबन $2 अरब कमाती है और ये सारी रकम किम जोंग उन के अकाउंट में चली जाती है। वैसे तो इस मुल्क का पूरा नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मगर रियलिटी में यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ इलेक्शन नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और हर 5 साल बाद होते हैं। लेकिन वहाँ सियासी जमात एक ही है, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, जिसके चेयरमैन किम जोंग उन खुद हैं। वोट देना सबके लिए लाजमी है। जो उस दिन घर से ना निकले उसे गद्दार समझा जाता है और सजा भुगतनी पड़ती है। इलेक्शन में हर हलके से सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा होता है। वोटर को सिर्फ हाँ या ना पर मोहर लगानी होती है। वोटिंग खुफिया नहीं होती, बल्कि हाँ और नहीं वालों के लिए अलग अलग बूथ बनाए जाते हैं। खौफ का ये आलम है कि कोई भी नहीं वाले बूथ में नहीं जाता और हर इलेक्शन में सक्सेस का रेशो 99.99 होता है। 0.01% नहीं वाले नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो बेचारे बुढ़ापे या बीमारी की वजह से वोट देने नहीं आ सकते। यहाँ सदर यानी प्रेसिडेंट का ओहदा 1998 में ख़त्म कर दिया गया। अब वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स का ओहदा है और ये सबसे बड़ा सरकारी ओहदा है। मार्च 2026 में नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम पीपल्स असेंबली के इजलास में तीसरी बार प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट अफेयर का चुनाव किया गया है। किम जोंग उन ना मुल्क के सदर हैं और ना वजीर आजम, उसके बावजूद वो मुल्क के सब कुछ हैं। फौज के सुप्रीम कमांडर भी, रूलिंग पार्टी के चेयरमैन भी और मुल्क के लीडर भी। वो 8 जनवरी 1984 को पैदा हुए। 1 मिनट, ये तो वो तारीख है जो अमेरिका बताता है। साउथ कोरियन इंटेलिजेंस 1983 कहती है, जबकि खुद नॉर्थ कोरिया 1982 बताता है। यानी किम की लाइफ की तरह उनकी डेट ऑफ बर्थ भी कंट्रोवर्शियल है। 2011 में बाप के इंतकाल पर 27, 28 या 29 साल की उम्र में मुल्क के रूलर भी बन गए और अपनी फौज के भी। हालांकि उन्हें फौजी मामलात का तजर्बा बिल्कुल नहीं था। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शक्ल अपने दादा जैसी बनाने के लिए सर्जरी करवाई है। उनके दादा किम इल संग अवाम में एक ताकतवर और बाअसर शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। इसलिए किम जोंग उन चाहते थे कि वो भी अपने दादा की तरह नजर आएं, ताकि अवाम उन्हें एक मजबूत और ताकतवर शख्सियत समझे। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट दूसरे क्लेमों की तरह इस क्लेम को भी रद्द कर देती है और कहती है कि किम की शक्ल नेचुरली अपने दादा जैसी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ज़मीन के नीचे पूरी एक दुनिया आबाद है और ये इतनी खुफिया है कि इसके बारे में वहाँ के आम शहरियों को भी नहीं पता। इस जगह का नाम है कोंगडोंग VIP कम्प्लेक्स। ये एक इंतहाई लग्जरी रिहायशी इलाका है और उसे VIP इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ आला हुकूमती शख्सियात या उनके मेहमानों को आने की इजाज़त है। यहाँ किम जोंग उनका आलीशान महल भी है, इसलिए ये इंतहाई हाई सिक्योरिटी जोन है और आम आदमी यहाँ आने का सोच भी नहीं सकता। इसमें अंडरग्राउंड गाड़ियाँ भी चलती हैं और ट्रेन भी। यहाँ रिहायशी इमारतें भी हैं और गेस्ट हाउस भी, बागात भी हैं और झीलें भी, फुटबॉल का ग्राउंड भी है और घोड़ों का अस्तबल भी। यहाँ सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी है
नॉर्थ कोरिया से भागकर आने वाले यानी डिफेक्टर तो क्लेम करते हैं कि उन सुरंगों में से कुछ चीन तक जाती हैं। किम जोंग उन अपने दफ्तर से निकलकर लिफ्ट के जरिए इस अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं और फिर वहां से गाड़ी में बैठकर खुफिया रास्तों के जरिए कहीं भी सफर कर सकते हैं और दुनिया का बड़े से बड़ा सैटेलाइट भी उनकी मूवमेंट का पता नहीं लगा सकता। वहां एक सड़क तो ऐसी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये कहां जाकर खत्म होती है, इसीलिए मगरबी मीडिया इसे अ रोड टू नोवेयर कहता है। खैर, ये खुफिया दुनिया किम जोंग उन के वालिद ने बनवाई थी। किम जोंग उन ने अपने बचपन का काफी अरसा इसी कम्प्लेक्स में गुजारा, क्योंकि उन दिनों उन पर सख्त पाबंदियां थी। उनके साथ खेलने वाले उनकी तरह के बच्चे नहीं थे, बल्कि 30-40 साल के सिक्योरिटी गार्ड होते थे। लेकिन उनकी जिंदगी का एक दूसरा एंगल भी है, जिसमें उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में तालीम हासिल की। वो स्विट्जरलैंड गए। इस दौरान उन्होंने यूरोप में एक अमीर बच्चे की तरह जिंदगी का लुत्फ भी उठाया, मगर वो यूरोप में अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सके। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया बुला लिया गया और फिर 10 साल बाद वो दुनिया में सख्त डिक्टेटरशिप रखने वाले मुल्क के सरबराह बन गए। उनकी अहलिया री सोल जू मुल्क की मशहूर गुलकारा थी। किम जोंग उन सिर्फ पब्लिक ही नहीं बल्कि अपनी हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदारों को भी नहीं बख्शते। उनकी किसी भी बात को ना मानना या मीटिंग के दौरान उनके सामने सो जाना मौत को दावत देने के बराबर है। कहा जाता है कि मई 2015 में एक मीटिंग के दौरान डिफेंस मिनिस्टर को नींद आ गई। इस जुर्म पर उसे सबके सामने गोली मार दी गई। किम जोंग उन पर यह इल्जाम भी लगाया जाता है कि उन्होंने अपने खानदान के कई अफराद को सख्त सजाएं दिलवाईं। दिसंबर 2013 में उनके फूफा को रियासत के खिलाफ साजिशें करने के इल्जाम में सजाए मौत दे दी गई। ये भी मशहूर है कि 13 फरवरी 2017 को उन्होंने अपने सौतेले भाई को हुकूमत से इख्तलाफ रखने पर मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर कत्ल करा दिया था। किम जोंग उन वैसे तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, मगर मोटापे पर कंट्रोल करना उनके लिए शायद मुश्किल है। इसकी वजह है पनीर। उन्हें पनीर इतना पसंद है कि उनके लिए हर साल बड़ी मिकदार में पनीर बाहर से मंगवाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक एथियस्ट और एंटी रिलीजन स्टेट है। किसी भी मजहब पर अमल करने या इसकी तबलीग करने पर सख्त पाबंदी है। अगर कोई किसी रिलीजन पर अमल करता हुआ पकड़ा जाए तो सज़ा सिर्फ मौत है। शुमाली कोरिया में किम खानदान को ही मजहबी हैसियत हासिल है। इसके लिए एक खास आइडियोलॉजी जोशे बनाई गई है। इस आइडियोलॉजी में खास तौर पर किम जोंग उनके दादा किम इल संग और बाप किम जोंग इल को सेंट्रल पोजीशन दी गई है। इन दोनों की तस्वीरें और स्टैचू हर घर, हर दफ्तर, हर स्कूल, यहाँ तक के हर अवामी मकामात पर लाजमी लगाए जाते हैं। पुलिस अचानक छापा मारकर चेक कर सकती है। अगर किसी घर या दफ्तर वगैरह में उनकी तस्वीर ना मिले तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। हम रिलीजन की बात कर रहे थे, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि कैपिटल प्योंगयांग एक शोकेस की तरह है, तो वहाँ थोड़ी रिलीजियस फ्रीडम है। वहाँ 5 चर्च हैं और एक मस्जिद है जो अल रहमान मस्जिद कहलाती है। ये मस्जिद ईरान की एम्बेसी में बनाई गई है। बाकी मुसलमान मुल्कों के सिफारत खानों का स्टाफ भी यहीं आकर नमाज पढ़ता है। टूरिज्म की बात करें तो अव्वल तो कोई गैर मुल्की टूरिस्ट वहाँ जाता नहीं, और अगर कोई भूला भटका चला भी जाए तो एयरपोर्ट पर ही उसकी अच्छी तरह छान पटक की जाती है। उसके फ़ोन में मौजूद एक एक चीज़ को सख्ती से चेक किया जाता है कि कहीं इसमें शुमाली कोरिया के खिलाफ कोई चीज़ तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो फ़ोन रख लिया जाता है और टूरिस्ट को वापस भेज दिया जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात बताऊँ, नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर भी बाकी दुनिया से अलग कर दिया गया था। 1997 में हुकूमत ने जोशे आइडियोलॉजी के मुताबिक एक कैलेंडर इंट्रोड्यूस कराया था। इसकी शुरुआत 1912 से हुई, जो किम इल संग की पैदाइश का साल है। इस हिसाब से 2024 में वहाँ साल 113 चल रहा था, मगर 2024 में इस कैलेंडर को ख़त्म करके 2025 से दोबारा इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर पर वापस आना पड़ा, जो सारी दुनिया में चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में इतनी पाबंदियों और सख्ती की वजह से बहुत से लोग वहाँ से फरार होने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग पकड़े जाते हैं और कुछ लोग किसी न किसी तरह वहाँ से निकलकर दूसरे मुल्क में पनाह लेने में कामयाब हो जाते हैं। वो अपने साथ खुफिया तौर पर ऐसी वीडियोस, तस्वीरें या डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं जिनसे नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत सी बातें दुनिया को पता चलती हैं। 2017 में नॉर्थ कोरिया ने दुनिया को चौंका दिया। दरअसल इस साल उसने एक ऐसा एटमी मिसाइल तैयार कर लिया था जो उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका तक को निशाना बना सकता था। मगरबी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन के पास कम से कम 40 एटमी मिसाइल हैं
اور وہ ایک نئے خفیہ ہتھیار کی تیاری کے قریب ہیں جو ویسٹ کے لیے پہلے سے زیادہ خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ سیکرٹ ویپن ہے 3000 ٹن کی ایک سب میرین جس کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ اٹلانٹک اوشین میں پہنچ کر لاس اینجلس جیسے بڑے شہروں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ مغربی میڈیا کے نزدیک یہ سب میرین دنیا کے لیے ایک نیا اور سیریس تھریٹ ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جب امریکہ اور یورپی ممالک ایران اور عراق پر صرف ایٹمی ہتھیاروں کا شک ہونے پر حملہ کر دیتے ہیں تو پھر انہیں نارتھ کوریا کی ایٹمی ٹیکنالوجی اور وہاں ہیومن رائٹس کی کھلی خلاف ورزیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ کیوں نارتھ کوریا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے؟ اس کا سیدھا اور بہت آسان جواب یہ ہے کہ شمالی کوریا ایران یا عراق نہیں، اس کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں اور امریکہ تک پہنچنے والے ایٹمی میزائل بھی۔ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی بھی فوجی کارروائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ نارتھ کوریا پر حملہ نہ کرنے کی دوسری وجہ اس کی جغرافی ہے۔ اس کی سرحدیں ڈائریکٹ چین اور روس جیسی طاقتوں سے ملتی ہیں۔ اس کے خلاف کوئی بھی فوجی کارروائی ان دونوں ملکوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ دونوں بھی میدان جنگ میں کود سکتے ہیں اور پھر وہ جنگ شروع ہو سکتی ہے جسے سنبھالنا امریکہ اور اس کے ساتھیوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے فی الحال اس پر دباؤ ڈال کر اور پابندیاں لگا کر کام چلایا جا رہا ہے۔ اچھا ہاں، ایک اور بات، ایران اور عراق کی طرح شمالی کوریا کے پاس تیل یا گیس کے بڑے ذخائر بھی نہیں ہیں۔ شاید اسی لیے امریکہ اس معاملے میں کچھ خاص دلچسپی نہیں لے رہا۔ کم جونگ ان جانتے ہیں کہ ان کا ملک بیرونی دنیا سے کٹ چکا ہے۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے اکانومی مشکل کا شکار ہے۔ عوام کو کھانے پینے اور دوسری ضروری چیزوں کی کمی کا سامنا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں اپنے لوگوں کو بیسک سہولتیں دینی ہوں گی اور اس کے لیے انٹرنیشنل آئسولیشن اور پابندیوں کے جال سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو ان کے اقتدار کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر 2018 میں انہوں نے ایک اہم قدم اٹھایا۔ وہ بطور سربراہ زندگی میں تیسری بار ملک سے باہر نکلے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سنگاپور میں تاریخی ملاقات کی اور پھر ایک ہیرو کی طرح واپس آئے۔ عوام کو یہ میسج دیا کہ ان کا لیڈر دنیا کے طاقتور ترین ملک کے سربراہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا جانتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اور بھی لیڈر ملاقات کے لیے آگے آئے، جیسا کہ چین کے صدر شی جنگ پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نارتھ کوریا بھلے ایک غریب ملک ہے مگر ایٹمی ہتھیار کی وجہ سے دنیا میں اس کی عزت ہے۔ فروری 2019 میں کم جونگ نے 2500 میل کا سفر کر کے ویتنام کا رخ کیا۔ وہاں صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی۔ مقصد تھا نارتھ کوریا پر پابندیوں کا خاتمہ کرانا۔ کم جونگ کو یقین تھا کہ معاہدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے ٹرمپ کو آفر کی کہ وہ اپنے ملک کے سب سے بڑے ایٹمی مرکز کو بند کرنے پر تیار ہیں، بدلے میں ان کے ملک پر لگی پابندیاں ختم کی جائیں۔ لیکن صدر ٹرمپ اس طرح کے ادھورے معاہدے پر راضی نہ ہوئے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ شمالی کوریا اپنے ایٹمی پروگرام کا مکمل خاتمہ کرے۔ کم جونگ نے انکار کر دیا اور پھر اچانک خاموشی چھا گئی اور ملاقات ناکامی پر ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ناکامی پر کم جونگ نے اپنے 3 اعلیٰ افسروں کو پھانسی دے دی تھی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ معاہدہ نہ ہونے پر کتنے ناراض ہیں۔ ویسٹرن میڈیا کے مطابق اس ناکامی کے بعد کم جونگ ان دوبارہ اس خوف اور دہشت کے نظام کی طرف لوٹ آئے جو 3 نسلوں سے ان کے خاندان نے قائم کر رکھا ہے۔ بہرحال نارتھ کوریا میں یہ حالات 1948 سے چلے آ رہے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ سخت ڈکٹیٹرشپ کے یہ دن ابھی مزید کتنی نسلوں کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ کم جونگ ان بھی 2 مختلف دنیاؤں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ان کے پاسٹ کی سخت کمیونسٹ روایات ہیں اور دوسری طرف ایک جدید اور قابل قبول رہنما بننے کی ضرورت ہے۔ یہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آیا وہ ایک نرم اور بہتر حکمران بن کر سامنے آئیں یا پھر اسی سخت نظام کو جاری رکھیں جو انہیں اپنے باپ اور دادا سے ملا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نارتھ کوریا دنیا کے باقی ملکوں جیسا بن پائے گا یا نہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔